the hunter-gatherer society. The population was very low, their impact on the ecosystem and the surrounding was very, very less compared to what we see today. Then somehow agriculture developed in Mesopotamia or fertile places, where because of agriculture, civilizations started to build. And that civilization has kind of written language, and they had surplus economy, they had a currency for exchange, and these were some of the requirements for start of the civilization. Many times we ask question that, for example, Indus Valley civilization, there are we are not able to decipher scripts, whatever is written on the seals in the form of pictogram or something like that. Many of you might have wondered why that is. So, not possible. As I told you, in case of cuneiform, which was in the Sumerian civilization, a intermediate link was discovered, which was a tablet called as Rosetta Stone, in which the Egyptian script as well as cuneiform both were written together, and some words were matching with each other, so they were able to figure out. But in case of Indus Valley civilization, still many of the scientists believe that that is not the kind of language, that is just pictogram. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब टॉयलेट में जाते हैं तो मेल फीमेल फोटो बना रहता है, या वाटर फाउंटेन का फोटो बना रहता है, या कार पार्किंग का फोटो बना रहता है. वो ये लैंग्वेज में एक बड़ी खासियत होती है कि यू हैव अल्फाबेट्स, and those alphabets are repeatedly combined in some manner to form words. That kind of repetition is not there. If that is a kind of ABCD or purple yes, I know, but still they make some kind of combination. But that kind of combination is absent. So this is one of the reasons that unless and until you have something together forming a word, you will not be able to decipher it. So each symbol has got its own unique communication purpose, and that purpose we are still not able to understand. So when we move from the Indus Valley civilization, I told you that Indus Valley civilization was very, very developed because of lack of time. This story goes on maybe hours and hours. So because of you know that Indus Valley civilization was one of the very, very well advanced civilizations, but still first civilization credit goes to Sumeria. Then you have got Egyptian civilization, then you have got Indus Valley. So Indus Valley was very developed civilization, where particularly urban urbanization and style of architecture which we find today in the ruins. Whether it was Mohenjo-daro, Harappa, Dholavira, now many part of the Gujarat we are getting many new kind of excavations, and where very list information is coming from. So that was the part, and then I told you that if you excavate layer by layer, you find that on the lower layers there are signature of crops which are more water demanding. As you go up, you find that arid crops or dry land crops are more dominant. So based on that, as well as in science you have hydrogen isotope analysis, in which you can distinguish whether water is from rainwater, whether water is from groundwater, whether it is coming from this side, that side. So you can just decipher that rainfall pattern from the hydrogen isotope ratio, and that ratio also indicates that more than 200-300 years of drought period was there. Now, of course, if a society is based on agriculture, then the drought happens. There is
100% chances of collapse of that civilization. I will not again use word the loss of civilization or disappearance of civilization, but that civilization collapse. And the same story repeats in Mayan civilization, Inca civilization, many places. In Mayan also there are evidence that water balance became negative side, the traffic roads was there, and because of that civilization. So relationship between environment and rise and fall of civilizations are very, very strong throughout the globe. Then we come to Roman civilization. Roman civilization, I told you that it's a highly developed civilization, you might be knowing about that, but it had its own problem. Roman Empire was roughly around 50 BC to 450 AD, and this is a very large verbose slide, but the message is that there was a lot of pressure for food production, lot of pressure for the use of natural resources, particularly wood and forest land. So what happened that one of the, actually they used lot of African part for getting their grain, getting their animals, getting their forest products, and what happened that deforestation happened, and because of deforestation, scrub land, grasslands here, and most of the area became desertified. So irrigation systems, they were very, very good engineers. रोमन का आप लोगों को पता होगा कि ये कंक्रीट उन्होंने ही खोदा है, सीमेंट उन्होंने ही खोदा है. अभी भी वहाँ पे एक्वाडर अगर आप देखेंगे एक देश से 50 किलोमीटर दूर से पानी ले जाने के लिए उन्होंने चैनल सिस्टम बनाए हैं जो ऊपर कॉलम्स पे, वो आज भी ऑलमोस्ट फंक्शनल है. अगर उसको यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं इस तरह. सो दे हैड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ऑल दोज थिंग्स, बट अगेन problem happened. What happened? I'm not here going on the core of history why Roman civilization fell. If you are interested, there is a very good series in Netflix, Rise and Fall of Roman Civilization. You can see that. But I told you that Middle Ages, very severe plague happened, and Black Death was there. आज भी साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं प्लेग गया कहाँ से, पहुँचा कहाँ से. कुछ लोग इंडिया को भी क्लेम करते हैं. सिकंदर पूरी दुनिया में लड़ाई करते करते आया और इंडिया में जब पहुँचा है, इंडिया पूरा कंकर नहीं कर पाया. क्या हो, उसकी तबीयत खराब. आप लोग दिल्ली वैली का नाम सुने होंगे. विदेशी कोई भी आता है दिल्ली में उतरता है, पहले उसका पेट खराब हो जाता है हाइजीन प्रॉब्लम की वजह से. तो सिकंदर को भी लगभग उसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, तो उसका हेल्थ जो है डाउन होने लगा. फिर वो बॉर्डर से ही और बड़ी वो लड़ाई हुई, उसके बारे में आप लोग जानते हैं, तो ज़्यादा डिटेल जानते हैं. बट डिजीज वाज वन ऑफ द, एक राइटर है, वो उन्होंने बहुत बढ़िया राइज एंड फॉल एंड सिविलाइजेशन लिखा है, जिसमें कि नहीं आ some germs and steel germs and something करके है, बता दूंगा आपको. तो वो उन्होंने ये कुछ चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे एक आता है नॉवेल वेपन हाइपोथेसिस. जब भी दुनिया में कोई फायर बहुत आगे बढ़ा है, तो उनके पास कोई ऐसा यूनिक वेपन रहा है जो कि वो उनकी यूनिकनेस थी, जो दूसरे उससे डिपेंड नहीं करता. ब्रिटिशर्स क्या, वो लोग तोप लेके आए, गन्स लेके आए, तो पहले से था थोड़ा इंडिया में, लेकिन वो उनके पास मोडर्निटी थी, उनके पास गन्स बाकी लोगों के पास. जब मंगोल्स आए, मंगोल के पास एक जो उनका धनुष था, एक टिपिकल आर्ट, वो अलग तरह का था शेप उसका. तो वो घोड़े पे चलते हुए भी बहुत शार्प निशाना मार सकते थे, वो दूसरे लोगों के पास नहीं था. इसी तरह से अगर हम बैग में रामायण पीरियड में भी जाते हैं, उससे पहले आता है
तो राम का रिलेवेंस क्या था, या महाभारत काल में अर्जुन का रिलेवेंस क्या था? राम का रिलेवेंस यही था कि वो धनुर्धर थे, अर्जुन का रिलेवेंस था धनुर्धर थे। अब भीम वर्सेस राम, भीम वर्सेस अर्जुन अगर आप सोचिए तो आपको वार में जब आप अपोजिशन से वार कर रहे हैं तो आप हैंड टू हैंड फाइट कर सकते हैं। आपके पास गदा है तो 5 फुट की फाइट कर सकते हैं, भाला है तो आप 15-20 फुट की फाइट कर सकते हैं, जो तीर है तो आप तो मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर कहीं से भी छुप के आप वार कर सकते हैं बिना आवाज के। तो हमेशा ये रहा है कि वेपन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो गन हो, चाहे वो तोप हो, चाहे वो एटॉमिक बम हो। हरदम दुनिया का एक जब एक बार अचानक से हुआ है तो कोई न कोई है वेपन के वजह से। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई, जो मैंने बताया कि रेनेसां आया, क्योंकि पर कैपिटा रिसोर्सेज बढ़ गए, तो इसलिए कि इतना ज़्यादा लोग मरे। 200 मिलियन मामूली नंबर नहीं होता है। उस जमाने की बात सोचिए, उस पीरियड में जब पॉपुलेशन बहुत है, ये लगभग 2.5 लोग जैसे लगता है खाली हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो मिडिल एजेस में क्या होता है कि एक तो रेनेसां था, लेकिन उसके पहले मैंने बताया था इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जो मेजर इकॉनमी उसमें थी, सभी ने फॉरेस्ट का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया कि फॉरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गए। और मैंने आपको बताया था कि उसके बाद वे कोल पे स्विच कर गए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि जब इंटरविजन होता है, जब लोग चाहे रोमन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे रोमन हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे आपके स्पेनिश थे, इंग्लिश थे, सभी लोग जब अपनी कंट्री से बाहर दूसरी कंट्रीज में रिसोर्सेज के लिए गए, उन्होंने कॉलोनाइज करने की कोशिश की। तो कुछ आइलैंड्स पे या कुछ कॉन्टिनेंट्स में इसके बड़े निगेटिव इफेक्ट हुए, एंड दैट वाज काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर। आप अमेरिका में जब नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं, आपको पता होगा कि वहाँ चिकन पॉक्स लेस्ट कंबल उन्होंने रेड इंडियंस में जिनको कहा जाता है सुपर रेड, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया रख के चले आते थे। वो उनको लगता था कि कंबल अच्छा है तो उड़ते थे, उनके पास क्योंकि इम्यूनिटी थी ही। पूरा जो साउथ अमेरिका है, जिसमें जहाँ जहाँ पे भी लैटिन अमेरिका जिसको बोलते हैं, जहाँ पे स्पेनिश गए, वो बेचारे मर गए केवल डिजीजेस, क्योंकि जो स्पेनिश गए उनके जो वायरस और बैक्टीरियल डिजीजेस थी उसके लिए वो लोग इम्यून थे। लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन आइसोलेटेड हज़ारों साल से वहाँ रही है, उसके पास कोई एक्सपोजर नहीं था, तो बहुत सारे लोग मर गए उसकी वजह से। इसी तरह से एक स्पेन का ऑक्युपाइड कैनरी आइलैंड, कैनरी आइलैंड में क्या हुआ है 1400 और 1600 के बीच में, कि इतना ज़्यादा, जैसे अभी होता है ना कि इंडियंस को ले गए थे, फिजी में ले गए थे, मॉरिशस में ले गए थे वो गन्ना के लिए, तो ये लोग भी उसी तरह से वहाँ गए। उन्होंने चाहे मसाला है, गन्ना है, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादातर शुगर केन प्लांटेशंस के लिए ले गए। एंड इमेजिन कि वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे वो नॉर्थ अमेरिका से आए हुए थे कैनरी आइलैंड में, और 1000 साल तक लगभग वहाँ थे। 1400 तक आते आते लगभग सब मर गए, कोई बचा नहीं उस रेस का। अभी भी नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है ग्रेट इंडियंस कितने स्ट्रगल से, कितनी कम पॉपुलेशन में। ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनल जो है वो आप जानते हैं कि उनके नंबर बहुत कम हैं। तो गन वार एंड डिजीजेस, गन जम्स डिजीजेस, ये या वेपन और बायोलॉजिकल वार पे हर जगह हुआ है, हर जगह प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो चाहे वो प्लेग का पीरियड का हो, चाहे वो कहीं पे पर्पसफुली इंट्रोड्यूस किया गया सोसाइटी में, उसके इम्पैक्ट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला ओरिजिनल चिपको मूवमेंट था वो 1730 में, आपको पता है किसको इसने वहाँ पे 294 मेन और 69 वुमेन दे डाइड खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। और राजा का महल बनना था, महल बनने के लिए चूना चाहिए। पहले तो सूखी चूना से जुड़ाई होती थी, सूखी चूना के लिए चूना चाहिए, चूना के लिए लकड़ी चाहिए, क्योंकि वो जो लाइमस्टोन है उसको बर्न किया जाता है थोड़ी, तो वो उनको रेगिस्तान में लकड़ी कहाँ मिलेगी, खेजड़ी के पेड़ थे
वहाँ पे इन लोगों ने बहुत सहेज के रखे हुए थे, उसको काटने गए, बचाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज भी अगर आप जाइए किसी भी बिश्नोई विलेज राजस्थान में जा रहे हैं, जो लोग गए हो कि आप देखे होंगे, तो वहाँ पे पूरा ओएसिस की तरह से होता है कि चारों ओर रेगिस्तान जैसा लगेगा, वो गाँव हरा भरा, बहुत सारे वृक्ष होंगे और जो जंगली जानवर है वो घूम रहे होते हैं, बारहसिंगा हिरन। उसका और ज़्यादा हाल पूछना हो तो सलमान खान से पूछ लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो फिर हम आते हैं इंडस्ट्रियल। वही उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं बिश्नोई लोगों की बात हो रही है। उन्होंने अपनी जान दिया वृक्षों को बचाने के लिए, चर्चा हो रही है। फिर हम आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भारत का एक कॉन्टेक्स्ट शुरू से ही रखा है कि हमारे पास एक हेरिटेज थी, पोल्यूशन की डिफिनीशन थी, हमने कंजर्वेशन की बात की, हमने यूटिलाइजेशन की, फिर हमारे पास ये इन्वायरमेंटलिज्म है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट है। सारे एलिमेंट जो आज आप करेंटली देख रहे हैं जो ग्लोबली, वो हमारे जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से और बीच बीच में आती रही, बाद में और तो अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बड़ा क्लियर चीज़ है। उसमें क्या हुआ कि मैंने आपको जो मैप वो चार्ट दिखाया था शुरू में, कि इसके पहले तक क्या था, हम पहले एनिमल एनर्जी यूज करते थे, फिर विंड और वाटर पे गए, उसके बाद जब कोल पे गए तो कोल डायरेक्ट बर्निंग हुई, उसके बाद सडनली आपको जेम्स वाट की कहानी जो बताई गई होगी बचपन में किताबों में, जेम्स वाट ने स्टीम की प्रॉपर्टीज से मैकेनिकल एनर्जी बनाने की विधि खोजी, तो वो स्टीम इंजन आया और उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो मैनुअल लेबर होता था वो रिप्लेस होने लगा मशीन से। और दूसरा चीज़ ये हुआ कि जब स्टीम इंजन हो जाता है तो एनर्जी एफिशिएंसी कोल पे भी बढ़ जाती है, क्योंकि पर यूनिट कोल जो आप ओपन आग जला के जो काम कर सकते हो, वो अगर आप एक बॉयलर में या किसी में आप जला रहे हो, उसे स्टीम जनरेट करके कन्वर्ट कर रहे हो मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो जो शिप मूवमेंट भी था, जो इंफेडरलिज्म है, जो लोग मूव कर रहे थे ब्रिटिशर्स या कोई भी उस जमाने में यूरोप से, तो उनका शिप मूवमेंट भी अब स्टीम से चलने लगा, पिस्टन से चलने लगा। तो बट कोल वाज सो हैवीली यूज्ड कि पोल्यूशन होने लगा। और उसके बाद जब आपके पास मशीन हो गई, जब आपके पास लेबर हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया, तो अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। पहले तो जो प्रोडक्शन सिस्टम्स थे सोसाइटी में वो डिस्ट्रीब्यूटेड, कपड़ा कहीं बन रहा है, कपास कहीं हो रही है, उसकी बुनाई कहीं हो रही है, बनाया कहीं जा रहा है, सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो फैक्ट्री हो गई, एक ही जगह सब होने लगा, तो इसकी वजह से पूरा लैंडस्केप आल्टर हो गया। दिस इज ऑलमोस्ट ये रियल पिक्चर है, तो क्या बोलते हैं मैनचेस्टर के आसपास की जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उस समय कैसी हालत थी। उसके बाद ये चाइल्ड लेबर वहाँ की जो मैनचेस्टर की फैक्ट्री थी, वहाँ पे आज जो एक यहाँ पे बड़ा मतलब मुझे अजीब तरह की फीलिंग आती है कि जो इस समय इंडिया की सिचुएशन लगभग आपको इस समय काल की बात कर रहा हूँ, यूरोप में लगभग उसी के पैरेलल में हम चल रहे हैं। पहले हम उनसे बहुत एडवांस थे। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में इकानमी में भी कहा जाता है, जो सोने की चिड़िया है वाली बात, कि हमारी इकानमी दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी थी। प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम सबसे बड़े इकानमी थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो भी फ्रांस था, ये यूरोप में इंग्लैंड था या जर्मनी था, ये सब लोग आगे बढ़े। तो जब इकानमी ग्रो करती चाइल्ड लेबर हो, आज हमारे यहाँ कहा जाता है कि यहाँ बंगली में चाइल्ड लेबर होता है या कहाँ चाइल्ड लेबर होता है, वहाँ पे भी होता था, वहाँ पे भी पोल्यूशन होता था, वहाँ पे भी चाइल्ड लेबर होता था। अगर आप लोगों ने डेविड कॉपरफील्ड पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, तो उसमें बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है चाइल्ड लेबर का, कैसे मिल में काम करते हैं, बच्चों को क्या क्या झेलना पड़ता है। तो
स्टीम इंजन की वजह से मिल्स आई, मिल्स की वजह से कोल का यूज बहुत ज़्यादा होने लगा, कोल का यूज होने लगा तो प्रदूषण हो गया। और ये 1830 आते आते बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ, कहानी और भी फाइन की जा सकती थी बट मैं जंप कर रहा हूँ। 1830 to 1890 इंग्लैंड में पार्टिकुलरली लंदन में स्मोक के एपिसोड्स आने लगे। आज जो हम दिल्ली में देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि जो खंडदार उस समय का वहाँ था लगभग पैदल यहाँ से, तो जब हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे होते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा होता है तो शुरू में इन्वायरमेंटल डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये हालत थी और लंदन में प्रॉब्लम्स हो गई। फिर अर्बन जो चैलेंजेस थे, ये कालरा डेथ्स बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर। एक कहा जाता है कि जॉन स्नो एक लंदन में फिजिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले दुनिया में GIS, तब GIS वर्ड नहीं होता था, मैप में वो करके उन्होंने कहा कि ये हैंडपम्प्स की पानी की वजह से पकड़ा हुआ। पहली बार दुनिया में किसी ने एक डिजीज का रिलेशनशिप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और उसके पॉइंट सोर्सेज पे उन्होंने देखा जहाँ जहाँ लंदन में हैंडपम्प्स हैं वहाँ वहाँ पे कालरा ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो पानी लोग यूज करते हैं वो शैलो बोरिंग है, शैलो बोरिंग में वो जो कंटामिनेटेड वाटर गिर जाता है उसके बाद इंग्लैंड की पूरी वाटर सप्लाई लंदन की चेंज हो गई। गटर सिस्टम, वाटर सप्लाई सारा कुछ उन्होंने चेंज किया और उनको पता चल गया ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा, आगे हम जब बात करेंगे थोड़ा और पीरियड ऑफ इनलाइटनमेंट, तो उस समय बात, उसके पहले क्या होता था, बीमारी, जर्म्स थ्योरी और सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। तो बीमारी जो होती है वो या तो कहते थे लोग, जैसे कि आज भी हमारे गाँव में बहुत सारे लोग कहते हैं देवी देवता का प्रकोप हो सकता है, खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की नज़र लग गई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तरह की चीज़ों में लोग बिलीव करते, आज भी करते हैं। हो सकता है बहुत लोगों के घर में आपका बच्चा बहुत मुरझाया हुआ आता हो तो माता जी वो नेचर से मुझे चाहती होंगी, ये होता है ऐसा। तो पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, दो टेक्नोलॉजी, एक तो GIS का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ एपिडेमिक्स को मैप करने के लिए पहली बार 1830-1890 के आसपास, और दूसरा कि जो पब्लिक हाइजीन है उस पर ध्यान जाए, ये यहाँ से उस समय 1800 के आसपास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैंने बताया था आप लोगों को कभी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है 4000 साल पहले की करीब वहाँ पे लोग गए थे, 4 to 6000, अभी 4000 तक। तो आपको थोड़ा शुरू में हमने मेंशन किया था कि पूरे इन आइलैंड्स पे चाहे जहाँ पे भी गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आसपास के आइलैंड्स हैं, चाहे वो मेडागास्कर, हर जगह जो मेगा फाना कहते थे, पहले तो वहाँ पे हुक्ड एनिमल होते ही नहीं, तो गवाइन जो जिनको बोलते हैं, जो गाय बैल टाइप वाले होते हैं, वो वहाँ पे थे ही नहीं, पोल्यूशन ही नहीं हुआ। जब ये लोग लेके गए वहाँ प्रॉब्लम हुई, फिर मिलियंस ऑफ शीप और कैटल वहाँ हो गए, कोई कंट्रोल नहीं था, ग्रेजिंग इतना किया इन लोगों ने कि फिर वो पूरा फॉरेस्ट और ग्रासलैंड डिस्ट्रॉय होने लगे, डेजर्ट बनने लगा। तो बहुत अभी भी देखिए 20 दिन में मुझे याद आ जा रहा है, जैसे आपने सुना होगा हवाई में 4-5 दिन पहले बहुत मैसिव फायर हुई, जिनमें कि 59 लोग मर गए। वहाँ पे भी कहा जा रहा है तो जो बाहर के लोग गए थे जिन्होंने ये शुगर केन प्लांटेशन शुरू किया, साथ में ग्रास ले गए तो ग्रास, अफ्रीकन ग्रास, वो ग्रास जो है वो अभी इतनी ज़्यादा जंगल में भर गई है कि एक चिंगारी से वो पूरा का पूरा आइलैंड ही है और थोड़े से ही प्रॉब्लम से पूरा। तो बाहर के फ्लोरा माना जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को पता होगा कि रैबिट्स जो है वो पेस्ट हो गए, इतना पेस्ट हो गए थे कि उनके लिए बाहर से वायरस ले जाना पड़ा उनको मारने के लिए। अभी कंगारू पेस्ट की तरह से वहाँ ट्रीट किए जाते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो कि आप कैट्स जो है वहाँ बहुत सारे आइलैंड्स पे कैट्स जो है वो पेस्ट की तरह से मानी जाती हैं, क्योंकि वो बाकी जो नेटिव फाना है या एनिमल्स हैं उनको नुकसान होता है। तो ये जो
इसको कहा जाता है मिक्सिंग होमोजेनाइजेशन। जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कोई जाता है तो अपने साथ अपने पौधे कुछ ले जाता है, एनर्जी के प्लांट ले जाता है, कुछ एनिमल ले जाता है उसके साथ, और वो प्लांट एनिमल ऐसे होते हैं जो कि वहाँ के लिए नए हैं। तो एक और वैज्ञानिक हाइपोथेसिस होती है कि इम्यूनी रिलीज हाइपोथेसिस, कि आप जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ पे तो 10 आपके दुश्मन हैं, कि आप और दुश्मन एक साथ पैदा हुए थे, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। अब आप दूसरी जगह ऐसी जगह गए जहाँ पे कि आप जैसे लोग पहले नहीं थे, वहाँ कोई दुश्मन भी नहीं होगा, है ना। जो दुश्मन होगा आपस में दूसरे लोगों की दुश्मनी चल रही होगी, तो होगा क्या कि इसको कहा जाता है इम्यूनी रिलीज है, कि आपका दुश्मनी नहीं कोई नहीं रहा, तो आप तो एकदम खुला मैदान है, जितना बढ़ना हो उतना बढ़ सकते हो। तो ये बहुत जो इन्वेसिव प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बाहर से आए हैं। यहाँ पे आप देखा होगा, लैंटाना देखा होगा, आपने पार्टिकल देखा होगा, बहुत सारे। अब हिमालय में अभी मैं जून में गया था, तो ऑलमोस्ट बद्रीनाथ के आसपास जहाँ तक बर्फ स्नो लाइन के नीचे तक आप देखिए लैंटाना बर्फ, इधर जाइए उधर लैंटाना बर्फ, और जबकि कभी ये बिलीव ही नहीं होता था कि ये प्लांट कितना दूर चल सकता। तो ये जो होमोजेनाइजेशन हुआ प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसकी वजह से सारे कॉन्टिनेंट्स की सूरत इन्वायरमेंटल बदल गई। आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मैंने बताया कि क्योंकि वो एक यूनिक टाइप का है, तरह से वहाँ सब कुछ विकसित हुआ रहता है, वहाँ कोई भी नई चीज़ आपको प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर आइलैंड्स में क्या होता है, बर्ड्स होती है फ्लाइटलेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है उड़ने की, और उड़ के जाएंगे कहाँ, 1000 किलोमीटर समुद्र है, वो कितना उड़ेंगे। तो उन्होंने ऐसा डेवलप कर लिया है जो फ्लाइट जैसे डोडो की बात है, तो वो जो भी आप यूरोपियन कुत्ते बिल्ली साथ लेके गए तो, या कोई भी जानवर गया उसके शिकार हो गए, तो 90% जो आइलैंड्स पे बर्ड खत्म हो गए। जब ये एक्सपेंशन हुआ है, ये 1800 के आसपास की, 1880-90 के आसपास की पीरियड की बात कर रहा हूँ। और मेगा खाना पूरा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इनिशियली डेवलप था। मैंने बताया था चिड़िया इतनी बड़ी बड़ी, जितना कि भेड़ के बराबर और बकरे के बराबर, और एनिमल्स बहुत बड़े बड़े, वो सारे खत्म। नॉर्थ अमेरिका में 1800 में, नॉर्थ अमेरिका बहुत लेट कॉलोनाइज हुआ, ह्यूमन कॉलोनाइजेशन नॉर्थ अमेरिका में बहुत लेट हुआ है, और इसलिए पॉसिबल हो पाया यूरोप से। एक बेरिंग आइलैंड है, जब सी लेवल, जब आप ग्लेशियल इंटरप्रेशन में जब बर्फ ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, समुद्र का तल नीचे रहेगा, वही पानी 1 किलो पानी है, चाहे बर्फ की तरह रखिए चाहे समुद्र में रखिए, जब बर्फ में ज़्यादा कॉन्टिनेंट में समुद्र नीचे रहता है, तो यूरोप और अमेरिका के बीच में एक बेरिंग आइलैंड, मतलब वो एक स्टेप टाइप का बनता है, जिसको जैसे हमारे यहाँ रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में पहले कहते हैं कि जब समुद्र नीचे रहा होगा तो रहा होगा और मिजाज में दिखाई भी देता है, वहाँ पे भी है। उस समय ह्यूमन्स उस टाइम में माइग्रेट किए और उसके बाद वहाँ पर कॉलोनाइज किए। तो फिर ह्यूमन्स जहाँ गए, मेरा मैसेज यही है कि जहाँ जहाँ ह्यूमन्स गए कॉन्टिनेंट, उन्होंने मैसिव डिस्ट्रक्शन किया 19वीं सेंचुरी तक। वेल्स, अच्छा एक और भी चीज़ है, ऑयल बहुत बाद में आया है, कोल के बाद ऑयल आया, बहुत बाद में आया है, जो 83 में आप उसके पहले एनर्जी के लिए क्या यूज़ करते थे, जो सॉलिड कोल था, अदरवाइज जो आपकी मोमबत्ती मैक्स लाइट जलाने के लिए, या रेल की जो चर्बी होती उसको यूज़ करते थे रोशनी। तो कुछ ऐसी रेल की प्रजातियाँ थी जो कि ऑलमोस्ट एक्सटींक्ट हो, एक दो जैसे रेल कहते हैं कि करीब 20-25 साल पहले की वो 150, 140, 130 बची, धीरे धीरे अब किसी तरह से रिकवर कर पाई हैं।
नॉर्थ पैसिफिक ट्रेल बोलते हैं उसको। तो ये वाइट है कि डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ। जर्मनी जापान में भी वही हालत हुई। केवल हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में गए, फिर हम आ रहे हैं जर्मनी और जापान में जहाँ डेवलपिंग हो रही थी, पूरा रिवर्स राइन जो है वो एकदम पोल्यूटेड हो गया। राइन उनकी मेन लाइफ लाइन है, जैसे हमारी ये गंगा है वहाँ जर्मनी के लिए राइन। और जापान में इतना ज़्यादा प्रदूषण हुआ कि एक बीमारी का नाम ही मिनामाटा डिजीज रख दिया गया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल हजार्ड्स में। ये विक्टोरियन इंग्लैंड के टाइम 1837 और 1901 जस्ट बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, जब फैराडे एक बार लंदन गए अमेरिका से, तो उस समय एक कार्टून, इधर वाला तो लंदन की पिक्चर है, थेम्स नदी की हालत देखिए, इधर एक कार्टून बना हुआ है जिसमें कि फैराडे अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं रिवर थेम्स, और नदी की हालत देखिए, उसमें सुअर तैर रहे हुए मरे, सब फिल्ड है, गंदगी है। तो फिर मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऐसा नहीं है कि यूरोप हमेशा चमकता रहा, अमेरिका चमकता रहा है, जापान चमकता रहा है, जो आज आप देख रहे हैं चीज़ों को, सारी चीज़ें जो हम झेल रहे हैं वो उन लोगों ने भी झेला। मैसेज केवल इतना होता है कि वो झेल रहे हैं तो हम फिर से झेलें, कि जरूरी थोड़ा है। उनके टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, तब तो नहीं था कुछ। तो जैसे थेम्स, आज अगर आप लंदन में जाएं, जो लोग भी लंदन गए होंगे, थेम्स देखे होंगे, तो पानी के 5 मीटर नीचे भी नदी को मछली तैर रही होगी तो दिखाई देगी, इतना साफ थेम्स नदी इतनी साफ है। या हम थेम्स भी देखें, हम राइन भी देखें, राइन इतना सुंदर लगती है कि आप उसको इमेजिन। तो एक हिडन मैसेज ये है कि कई बार होता है डेवलपमेंट से डिस्कशन होते हैं, लोगों को लगता है बेचैनी होती है, हम जब ट्रांसफर करते हैं तो धीरे धीरे एक फेज आता है जिसमें कि हम चीज़ों को फिर से, अब जापान में जाएंगे, अगर इस समय जाइएगा देखिए तो वहाँ पे करीब 20-25 साल पहले ब्लू स्काई मूवमेंट चला। अब वहाँ जो स्काई है वो हम तो ब्लू स्काई कभी देखे ही इंडिया, आप कभी देखे हिमालय पे जाइएगा, कहीं जाइएगा जो नीले रंग का खूब बढ़िया आसमान होता है, प्लेन्स में नहीं दिखाई देता इंडिया में, पक्का नहीं दिखाई देता। हिमालय का कोरोना के टाइम थोड़ा लगने लगा था हल्का हल्का। पैगाम झील के पास हमने देखा था आकाश को या पानी को बहुत नीला, एक नेचुरल वैसा कहीं और नहीं। कहाँ पे? पैगाम झील के पास इतना साफ आकाश। तो वो तो मैंने कहा ना कि ऊपर आपको मिलेगा। अच्छा, किसी के पास कैमरा है, मोबाइल यूज कर रहे हो आप, या पहले SLR यूज कर रहे हो? एक बार जब मैं पहली बार जर्मनी गया, बहुत बढ़िया कैमरा गया, SLR 9 उसके बाद मैं वहाँ फोटो खींचा था, खूब बढ़िया फोटो आता था, एकदम चमकता हुआ, सब कुछ ब्राइट। यहाँ लेके आया, बनारस में फोटो खींचा तो फिर वो सब डल का नदी दूसरी टाइप का जो हिंदी बोलते हैं वो दिखाई देता था, इतना बढ़िया। पहले हमको लगा कि इंडिया में नकली फिल्म मिलती होगी, वो फिल्म वाली थी, ये वहाँ वाली फिल्म ज़्यादा अच्छी थी। फिर उसी कैमरा, उसी फिल्म को लेके मैं 15 दिन हिमालय में चला गया, नैनीताल और ऊपर थोड़ा, फिर वही यूरोप वाली क्वालिटी आ गई। तब हमें समझ में आया कि जो डस्ट स्कैटरिंग इतना हो रही है, लाइट क्वालिटी का डस्ट, वो पॉइंट ये है कि इन सारे कंट्रीज में प्रॉब्लम हुई। मुझे जापान में बताया 25 साल पहले उन्होंने ब्लू स्काई मूवमेंट किया, आज पूरा ब्लू स्काई। तो मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो कहती है ब्लू स्काई क्या होता है आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जितना सुंदर आसमान दिखाई देता है, रात के तारे दिखाई देते हैं, कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप कभी लेह में गए होंगे, रात में कभी आप आसमान देखिए, जैसे लगता है कि ऐसे तारे तोड़ देंगे, एकदम चमकते हुए दिखाई देता। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी होती थी। कोरोना पीरियड में आपको याद होगा कि लोगों को हिमालय दिखाई देने लगा था छत से, है ना? तो यूरोप में, अमेरिका में, जापान में
सब जगह इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है जिनको कि हम लोग आज फेस कर रहे हैं। फिर 20th सेंचुरी में क्या होता है, ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन। फोर्ड ने, ऑटोमोबाइल पहले आ गया था, लेकिन फोर्ड ने क्या किया कि वो एक टी मॉडल निकाला जो कहते हैं पहला प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था, इसको वो बैच क्या बोला जाता है उसको, कन्वेयर बेल्ट। पहले क्या होता था कि सारा स्पेयर रख दिया, एक मिस्त्री टायर भी लगा रहा है, वही इंजन भी कस रहा है, वही डोर भी कस रहा है, वही विंडशील्ड भी लगा रहा है। तो उसमें एक मिस्त्री को एक कार बनाने में 20-25 दिन 30 दिन लगते थे। और फोर्ड ने क्या किया, उन्होंने कन्वेयर बेल्ट बना दिया, कहा कि एक आदमी केवल एक बोल्ट कसेगा, गाड़ी मूव कर जाएगी, फिर दूसरा आदमी दूसरा बोल्ट कसेगा, तीसरा आदमी उस पर रैपर लगाएगा, चौथा आदमी, है ना। तो वो अब सैकड़ों कार एक साथ कन्वेयर बेल्ट पे मूव करने लगी और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कार से शुरुआत हर चीज बन रही है। आपका मोबाइल भी उसी तरह से बनता है, आपका कैमरा भी उसी तरह से बनता है, आपका शर्ट उसी तरह से बटन पे लगा है, काटता कोई और है, जेब कोई और सिलता है, बांह कोई और सिलता है, लास्ट में बटन कोई और लगाता है, आयरन कोई और करता है, पैकिंग कोई और करता है। तो एक फैक्ट्री में 500 शर्ट, जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए एक दिन में 500 शर्ट बनाए, जो कि शायद एक हफ्ते में भी नहीं। एनीवे, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि कार सस्ती हो गई। टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जब मास प्रोडक्शन होने लगता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। याद है आपका मोबाइल इतना बड़ा घोड़े जैसा होता था, तो जिसके पास रहता था उसको लोग बाहर निकाल के चलते थे। कुछ लोगों का देनी होता था कि काल नहीं भी आया होता, हाँ बात करते हुए दिखाने के लिए मेरे पास मोबाइल हुआ करता था। लेकिन जब मास प्रोडक्शन होने लगा तो आप जन जन के पास, तो अगर आपके दाई के पास नहीं हो मोबाइल, हमारे घर में कोई नहीं रह जाती तो पहला सवाल मेरे उनसे वही पूछते हैं मोबाइल है कि नहीं तुम्हारे पास, है ना। वो जरूरी है, नहीं है तो हम तुमको नहीं रखेंगे। या गांव में भी है, कहीं पे भी। तो ये है जब टेक्नोलॉजी मास प्रोड्यूस होने लगती है, उसके फायदे भी होते हैं, उसके केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब आए। मैंने बताया था इसका हैबरबॉश प्रोसेस नाइट्रोजन बनाने की। उसके पहले नाइट्रोजन जो है आपको केवल कंपोस्ट से मिलता है। केमिकल फर्टिलाइजर कुछ जो नेचुरल थे, जैसे गांव में हम लोग पहले शोरा बोलते थे, क्या बोलते थे, तो जो कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए पहले यूज किया जाता था, तो यूरिया नहीं होता, तो नहीं, वो तो केमिकल हो गया ना। आप लोगों को याद हो, हम तो उस बचपन को जिए हैं जिसमें कि मैं तो हर बार वो जो होता है टेक्नोलॉजी हाइब्रिड देखा कि रेह से कैसे कपड़ा धोते हैं, वो भी मैंने देखा हुआ, हम लोगों ने भी देखा है ना, या रेह कैसे निकालते हैं उस में से, वो भी देखा है। तो चीज़ें कैसे बदली हैं, ये सारी एक्सपीरियंसेस में है। आप DDT आज सबसे डेंजरस केमिकल माना जाता है। आप सुना है ना कि वो बैन हो गया है, ग्लोबली बैन हो गया है। इंडिया में केवल कुछ जगहों पे अभी तक कुछ दिनों तक चलता था, अब तो BSc उसमें वैक्सीन जो होता है वो चलने लगा। DDT की हालत ये थी कि हमारे गांव में किसान का बेटा हूँ, तो भैंस को जब बहुत ज़्यादा वो टिक्स हो जाते थे तो उसको पूरा जैसे हम लोग पाउडर लगाते हैं वैसे DDT का पाउडर लगाया जाता था, 2 घंटा 3 घंटा छोड़ा जाता था, उसके बाद उसको धोते थे। और उसको देख के गरीब लोग, वो भी अगर जुएं पड़ी रहती थी तो DDT लगा देते थे। तो और वह जो वन ऑफ दी वर्स्ट मोस्ट डेंजरस केमिकल माना जाता है। तो चीज़ें आई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं। प्लास्टिक्स मिरेकल था। बचपन में हम लोग चाय लेने जाते थे तो चाय कैसे मिलती थी, या छोड़ दीजिए चाय, पार्ले जी ज़्यादातर हम लोग जो है लगभग एक तरह से, वो पार्ले जी जो है था वो प्लास्टिक में नहीं मिलता था, वैक्स कोटेड कागज के ऊपर
या वो एक एसार्टेड बिस्किट, जब मेहमान कोई आते थे दूर से और बहुत बच्चों को उनको पता था घर में बच्चा है, तो एसार्टेड बिस्किट का एक बड़ा सा पैकेट भी आते थे, इसमें कागज में सब लपेट के 3-4 तरह के बिस्किट। आज कोई भी चीज़ बिना प्लास्टिक की नहीं मिल रही है। तो प्लास्टिक जो है वो अभी सिचुएशन हो गई है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज प्लास्टिक को मरने लगे। कैसे खत्म करें उतनी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। समुद्र जो है वो एकदम फट गया है प्लास्टिक से। हम जो दिखाई दे रहा है उस प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे, जो नहीं दिखाई दे रहा है उस प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच गया है। महिलाओं के फीटल से होते हुए न्यू बॉर्न बेबीज तक पहुंच रहा है प्लास्टिक, जो माइक्रो प्लास्टिक। क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कैसे होंगे, वी डोंट नो। बट कार्ब मिरेकल थी, डीडीटी मिरेकल था, टेफ्लॉन मिरेकल था, बहुत सारे, या डीडीटी मिरेकल था, या 2,4-D मिरेकल था, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जिनको बैन किया गया बाद में वो मिरेकल थे। सब चले, सबकी प्रॉब्लम हुई, तो ये चीज़ें आती रहती हैं। और हम लोग सबको 1900 तक जो है वो सॉइल इरोजन इतना इंटेंसिव एग्रीकल्चर होने लगी कि सॉइल इरोजन अमेरिका में तो पूरा एक डस्ट बॉल वाली सिचुएशन आ गई। डस्ट बॉल की सिचुएशन क्या है, पूरा जहाँ देखिए वहाँ धूल हो गई और हजारों हजार किलोमीटर तो और सॉइल जो है वो खराब हो गई। इस तरह की हालत, इस तरह का आप लोगों ने कभी वीडियो देखा है? आपने नहीं फील किया है? 1986-7 में 10-12 दिन तक बनारस में पूरा आसमान पीला पीला था और जैसे लगता था सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया है और एकदम अजीब बेचैन जैसी सिचुएशन थी, जैसे लगता था कि कहाँ से हवा चल नहीं रही है, धूल भरी हुई है चारों ओर। होता है, यहाँ पे भी होता है, हम जानते नहीं हैं, इसीलिए मैं इतिहास को रिपीट कर रहा हूँ। हम जानते नहीं, हमको लगता है हो रहा है। ये बहुत बड़ी क्राइसिस थी वहाँ। अमेरिका की पूरी एग्रीकल्चर एक तरह से कोलैप्स हो गई है। तो फिर हम आते हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया कि इसी समय नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आया, इसी समय पेस्टिसाइड्स मैक्सिमम आए, इसी समय एंटीबायोटिक्स। आपको पता होगा कि यान फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में लगभग खोजा था। और लोग कहते हैं कि पेनिसिलिन के डिस्कवरी के पहले गोली से कम लोग मरते थे, घाव से ज़्यादा लोग मर जाते, है ना। तो वो उनको डर गोली से नहीं होने लगता था, उनको डर लगता था कि कहीं कोई वुंड लग जाएगी तो हम बचेंगे। फिर पेनिसिलिन आया, एंटीबायोटिक आया, उससे क्या हुआ है, पेनिसिलिन आने के बाद एक और बहुत मिरेकल, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है। मैंने बताया उसकी प्रोडक्शन से लिंक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है वो अलग, एक कांस्टेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हुआ करता है। 10 बच्चा पैदा हुआ, उसमें से अब आप नंबर में कितना बचा हो, सबकी अपनी अपनी ट्रेजेडी है। लेकिन ये आपको पता होगा कि लार्ज फैमिली साइजेज होती थी, सबके घर में होगा कि बाप दादा के आगे वाली जनरेशन में कि वो 3 बच्चे उसके हुए थे, एक ही बच्चे, या 5 बच्चे हुए थे, एक ही बच्चे, इस तरह का होता था, बहुत कॉमन था। तो वो जब एंटीबायोटिक्स आता है तो चाइल्ड मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, क्योंकि बाकी कोई माइक्रोबियल का कंसर्न नहीं रहा। तो अब जो माइनस हो रहा था, प्लस तो हो रहा था, वो हो रहा है, जो माइनस हो रहा था वो भी बंद हो गया, पॉपुलेशन के पास जंप कर गई। एंटीबायोटिक्स ने ह्यूमन पॉपुलेशन को एक जंप और दिया, एग्रीकल्चर ने दिया, फिर एंटीबायोटिक्स। तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स और ये सब चीज़ें आई, और फिर हुआ क्या कि 1948 से लेकर 55-56 तक के आसपास तक कई सिटीज में स्मोक एपिसोड्स हुए। लंदन में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, एलए में हुआ, पेंसिल्वेनिया में हुआ। उसके बाद 1955 में पहला कॉन्फ्रेंस एयर पोल्यूशन को, 1955 बहुत पहले की चीज़ नहीं है। अगर हम लोग अपनी लाइफ स्किल देखें तो क्या है, एकदम कल की बात जैसा लगता है। तो इमेजिन करिए कि एयर पोल्यूशन का कंसर्न साइंटिस्ट
इतने सीरियसली कब लिया है? 1955 के बाद, और हम आज परेशान होकर वो कर रहे हैं। 1952 का एपिसोड जो लंदन का था, 12,000 लोग मर गए थे एक वीक में। दिल्ली का याद है, दिल्ली में क्या हालत हुई थी कुछ दिनों पहले? कितने लोग आज मोर्टेलिटी हो रही है कोरोना से पहले। अभी भी दिल्ली की हालत यही हो जाती है, लगातार डेथ हो रही। इवन बनारस में हो रही थी, बनारस में रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, दिल्ली में रिकॉर्ड रखा जाता है। और ट्रेजेडी सबसे बड़ी ये है कि इंडिया में अगर किसी भी हॉस्पिटल से या किसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आप पूछ लीजिए कि कितने लोग एयर पोल्यूशन से मरे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो आज आप डेथ क्या रिकॉर्ड किया जाता है इंडिया में? कार्डियक अरेस्ट 90% केसेज में। इवन कोई सुसाइड भी किया हो तो पहला लीक एंट्री रहेगी कार्डियक अरेस्ट, और उसके बाद बाकी डिस्कशन रहता है। क्यों? दिल बंद हो गया तो हम नहीं रहे, जब दिल चलता रहेगा तो कुछ तो आशा है। तो कार्डियक अरेस्ट पहला सिम्टम होता है। कहीं पे भी एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या इस तरह से मर रहे हैं ये नहीं लिखा जाता, या आपको क्या था। सो उस समय 1956 में जो बसें लंदन में चलती थी, उनकी हेडलाइट इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो सीधे चल सके, तो उनके आगे पेट्रोमैक्स लेके कोई चलता था कि उनको रास्ता दिखा सके लंदन में। 56 की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर आप लोगों ने डेविड कॉपरफील्ड या उस पीरियड के जो नॉवेल्स पढ़े होंगे, पेनी बॉयज का जिक्र आता है। पेनी बॉयज क्या होते थे? छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको बस से उतरिए आप, एक पेनी देना होता था और लालटेन लेके रहते थे दिन में, और आपका घर खोज के बताते थे कि आपका घर उधर है, वहाँ है, तो आप जाइए। या कोई गेस्ट आया तो उसको, क्योंकि सारा कुछ धुंधला है तो दिखाई नहीं दे रहा। तो जस्ट इमेजिन द वे वाटर पोल्यूशन वाज देयर इन लंदन, द वे एयर पोल्यूशन वाज देयर इन लंदन, द वे डेथ हैपेंड इन दोज सिटीज, और सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। मैंने कई बार कर, जैसे हमने रोम वाला दिखाया था कि अगर हम नाम नहीं लिखें तो सारा कुछ इंडिया में लगता है। ये फोटो अगर हम कुछ नहीं करते, खाली वो बस को इसे कर देते तो आप कहते हैं दिल्ली की है ना। तो उसके बाद क्या होता है 56 के बाद कि धीरे धीरे जन जागरण टाइप का होता है, लोगों को लगने लगता है कि ये तो बहुत हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 1970 के आसपास बर्थडे की बात आती है। अमेरिका आइडिया रहता है ज़्यादातर चीज़ों, क्योंकि इन्वायरमेंटलिज्म वहीं शुरू हुआ, इंग्लैंड में या यूके में नहीं शुरू हुआ, न तो जर्मनी में शुरू हुआ, और वो भी शुरू हुआ, आगे मैं बताऊंगा, रेचल कार्सन एक लेडी थी। हर जगह लेडीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा कहीं पे भी। तो राइज ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, देन इंटेलिजेंस। इन्होंने किताब लिखी साइलेंट स्प्रिंग, कॉमनली अवेलेबल है, और हिंदी में भी ट्रांसलेशन अवेलेबल ऐसा है। नीरव बसंत या कंप्यूटर भी देखा था, पढ़ा नहीं है तो इंग्लिश वाला पढ़ा है। तो इन्होंने क्या किया कि पहली बार DDT को लेके कहा ये बहुत डेंजरस चीज़ है, इससे तो बर्ड्स के जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें प्रॉब्लम, और क्योंकि जो अंडा होता है DDT की वजह से उसका जो खोल होता है वो इतना नरम हो जाता है कि अगर उस अंडे को सहने के लिए चिड़िया उस पर बैठती है तो अंडा को लग सकता है। तो उनका साइलेंट स्प्रिंग नाम इसलिए आया कि क्या कुछ दिनों बाद हमारा बसंत जो है मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा, चिड़ियों की चहचहाहट जो है बंद हो जाएगी, इससे ये नाम आया साइलेंट स्प्रिंग। और इस किताब ने अमेरिका में जो जन जागरण किया कि उसके बाद वो मूवमेंट हो गया। फिर अमेरिका को EPA एस्टेब्लिश करना पड़ा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पोल्यूशन के लॉ करने पड़े, बहुत सारी चीज़ें हुई इस लेडी की वजह से। एक किताब कोई छाप नहीं रहा। तो 61 में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एस्टेब्लिश हुआ, और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका है। 61 के पहले क्या था, ये
ये राजाओं महाराजाओं का क्लब था, WWF होता था, लेकिन वो उनके शिकारगाह जो थे उनमें जानवरों की सुरक्षा की कि राजा साहब जहाँ शिकार करने गए तो जानवर मिले। बाद में जब वो इंपीरियलिज्म खत्म हुआ ब्रिटेन, उसमें ज़्यादातर लोग ब्रिटेन के लोग थे, जैसे महाराजा लोग इस तरह के लोग थे। बाद में जब खत्म हुआ तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया कंजर्वेशन सोसाइटी, और ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ट्रस्ट, हजारों प्रोग्राम चलते हैं इसमें। Then 64 में वाइल्ड रिजर्वेशन आया, 67 में ग्रीन पीस आया, अमेरिका में 67 में इन्वायरमेंट डिफेंस फंड आया। अब हम उस पीरियड में पहुंच गए जहां लगभग सभी लोग अवतरित हो चुके हैं धरती पर। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट 69 में अमेरिका में आया। बाद में इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत बाद फिर EPA 70 में बना। पहला 72 में UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम में होता, और वो ओलेफ पामे का नाम सुना होगा, जिनको बेचारे को मार दिया गया था जब किसी ने शूट कर दिया था। ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किया। इंडिया की देन प्राइम मिनिस्टर जो थी वो एकमात्र केवल अकेली हेड ऑफ स्टेट की पूरी वर्ल्ड की जो उसको इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अटेंड किया, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि बहुत फेमस है कि पॉवर्टी इज बिगेस्ट पॉलिटिक्स। गरीब से वही गेहूं गुलाब वाली बात कि हम गरीब हैं, हमको डेवलप करना है। जब तक हमारी गरीबी नहीं दूर होगी तब तक हम पोल्यूशन क्या करेंगे। एनीवे, सही था गलत था क्या था हम नहीं जानते, बट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो हमेशा प्राउडली बोलते हैं कि इंदिरा गांधी जब UN कॉन्फ्रेंस में गई तो उस समय इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट होते नहीं थे। इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट जो हम लोग मास्टर्स कर लिए उसके बाद बने स्कूल, बहुत बाद के थे। तो जो उनके कोई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं था, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट नहीं था इंडिया में, कुछ नहीं। तो जब उनको इंदिरा गांधी को स्पीच जो देना था वहाँ पे लिखने की बारी आई तो इंडिया में खोजा जाने लगा कौन इस स्पीच को तैयार करेगा। तो उस समय BHU के बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर R मिश्रा थे, रामदेव मिश्रा। तो उनको फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने उस ड्राफ्ट को बनाया। और बाद में इस कॉन्फ्रेंस में R मिश्रा भी गए थे, 2 स्टूडेंट्स को भी जाना था, पूरा खर्चा गवर्नमेंट दे रही थी। एक गए जिनको मैं जानता हूँ, मैं बुलाता हूँ लोगों के गुरुदेव टाइप के। दूसरे बेचारे अभी भी जब स्टूडेंट से मिलते हैं तो कहानी करते हैं कि मैं जा नहीं पाया, मेरे पास पासपोर्ट, और उस जमाने में 15 दिन में पासपोर्ट बनता है। तो जिनके पास पासपोर्ट था वो इंदिरा गांधी की टीम के साथ प्रोफेसर मिश्रा गए, एक स्टूडेंट गए, और एक DM इशू हुआ करते थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जब पहले बना तो उसको पहले सेक्रेटरी जो थे वही हुए, MPRI को प्रेसिडेंट के बाद में वहाँ गए, और उन्होंने ही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का जो कोर है तो बनारस से उसका रिलेशन है, इसलिए मैं इसको बता रहा था। और यही पहला था जिसमें कि पूरे वर्ल्ड के लोग पहली बार एक साथ बैठ के इन्वायरमेंट के बारे में बात करें। फिर उसके बाद साइट्स आया, ये मैंने बता दिया है कि ओरिजिनल चिपको वहाँ था, ये 74 में। फिर 2 लेडीज ने इंडिया का नेक्स्ट मास मूवमेंट शुरू किया। मैं आप लोगों को ज़्यादा उत्साहित कर रहा हूँ कि आप देखिए शुरू से, चाहे वो ओरिजिनल चिपको था उसमें भी लेडीज पहले आई थी, इसमें भी लेडीज गौरा देवी और उनकी जो टीम से पहले आई। अमेरिका ने पहले शुरू किया, खेती आप लोगों ने पहले शुरू किया, सब कुछ। तो ये बाद में क्या हुआ कि सुंदरलाल बहुड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों लोग इसको, तो चंडी प्रसाद दोनों के अलग अलग रोल थे। सुंदरलाल बहुड़ा थोड़े वोकल थे, जो लोग जानते होंगे उनको, और वो प्रचार प्रसार ज़्यादा करते थे, और चंडी प्रसाद भट्ट जी थे वो जैसे विनोबा भावे और गांधी जी टाइप वाली बात, दोनों लोग गांधीयन। तो
चंडी प्रसाद भट्ट नवा भावे टाइप के थे, काम करना और चुपचाप करना। और तो दोनों मेरे को दोनों से मिलने का सौभाग्य मिला। चंडी प्रसाद जी हमारे स्कूल में 3 बार आ चुके थे, अब तो थोड़ा बुजुर्ग हो गए, उतना आना नहीं चाहते, बट दीज आर द पीपल हु क्रिएटेड ए मास मूवमेंट, और उसकी वजह से इंडिया के जंगल बचे। आप लोग कभी गलत फहमी में नहीं रहिएगा, मैं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, काट निकालिएगा लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है तो हो रहा है बहुत सारे, क्योंकि अब तक क्या था ना कि जो इंडस्ट्रिस्ट थे वो बड़े कैजुअल हो गए, उनको लगा कि सब खूब कमाई हो रही। कभी कभी अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट की किताब या कुछ पढ़े तो उसमें एक किताब में एक किताब है आपकी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें एक इंसिडेंट लिखा हुआ है कि मैनेजर का रोल का, कि एक मैनेजर है, फैक्ट्री को एक बढ़िया से चला रहा है, वो सारे मशीनरीज की मेंटेनेंस करता है, सब कुछ करता है, और लेकिन उसका प्रोडक्शन लेवल एक पे है। दूसरा एक मैनेजर आता है, वो 2 शिफ्ट में काम करवाना शुरू कर देता है, प्रोडक्शन 2x हो जाता है, उसको बहुत कम के मिलते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन मशीन को मेंटेनेंस का टाइम नहीं मिल रहा है। फिर कंपटीशन में तीसरा आता है, वो 2.5x कर देता है प्रोडक्शन। अब मशीन जो है वो जो तेल भी डाला जाता था वो भी नहीं डाली जा रही, और एक दिन पूरी चौथा जब आता है बेचारा, जो 2.5x के बाद उसके टाइम में फैक्ट्री बैठ जाती है, सारा दोष उसी को देता है, ये चला नहीं पाया, है ना। तो इसी तरह से कहीं भी जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में जब शुरू में सब कुछ नया रहता है, लोग नए हैं, पुर्जे नए हैं, राष्ट्र नया है, सब कुछ नया है, तो लगता है कि बहुत तेजी से तरक्की हो। लेकिन हर ग्रोथ कर्व में एक प्लेट्यू आता है, उस प्लेट्यू तक पहुँचते पहुँचते फिर आपको अब अमेरिका से और जापान से आप एक्सपेक्ट करिएगा कि 8% ग्रोथ करें, ये हंसने वाली बात है। इस इकोनॉमिक जो जानता है वो जानता है कि बेस नंबर उनके इतने बड़े हैं कि उनका 1% हमारे 10% के बराबर है। बेस नंबर पे ना ग्रोथ होती है, परसेंट 100 रुपये का 10% ग्रोथ 110 होगा, 1000 रुपये का 10% ग्रोथ जो हो 1100 होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में क्रेडिबिलिटी और भोपाल ट्रेजेडी वन ऑफ दी वर्स्ट केस इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री है। फिर चेरनोबिल हुआ, चैलेंजर शटल का हुआ, वो भी कंप्रोमाइज थे, लोगों को पता था बास्केट में कोई प्रॉब्लम चैलेंजर, उनको लगा उड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, थोड़ी सा तो दिक्कत है, वो सिस्टम रेजिलियंट है, संभाल लेगा, नहीं संभाल पाया। फिर एक ऑयल स्पिल हुआ था, ऑयल स्पिल हमेशा होते, बट अलास्का साउंड में जो ऑयल स्पिल हुआ था वो इतना मैसिव था, इतना डैमेज हुआ उसमें कि आप सो देन बिकॉज ऑफ ऑल दिस 32 में कन्वेंशन फॉर दी वाइल्ड लाइफ आया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए, और अगर किसी इंटरनेशनल समझौते और उसके सक्सेस की बात होती है तो एकमात्र यही है जिसको कहा जाता है सक्सेसफुल। अकेले और कोई भी चीज़ कहीं कोई पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर IPCC कमेटी में सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका के, वहीं का जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम है वही नहीं मानता है क्लाइमेट चेंज, तो उनकी गवर्नमेंट कहाँ अडॉप्ट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की भी यही हालत है, बहुत सारे कंट्रीज की यही हालत है कि जहाँ के लोग देश साइंस कर रहे हैं वो अपनी ही गवर्नमेंट को नहीं समझा पाते हैं कि क्लाइमेट चेंज है कि नहीं। अभी भी एक ग्रुप है वो कहता है क्लाइमेट चेंज नहीं, इतना देखेंगे भाई आप। अब ये डिबेट की बात है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। फिर 88 में बासल कन्वेंशन होता है, 87 बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर लेडी आ गई है ना, फिर लेडी आ गई। ये फ्रंटलाइन है
और ये भी प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की, और इन्होंने एक कमीशन को हेड किया था, दैट वाज कॉल्ड एज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एंड 87 में इन लोगों ने एक रिपोर्ट सबमिट, ये भी जैसे IPCC है उसी तरह से मल्टीनेशनल एक कई कंट्रीज के लोग, इसमें इंडिया के भी एक दो लोग थे। तो पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन यहीं से इंस्पायर हो गया है, इसकी तरफ से ये किताब मिलती है ऑनलाइन भी आपको मिलेगी, ये पढ़ना चाहिए, किसी को भी पढ़ना चाहिए, और ये इसमें कोई टाइम का वो नहीं है, आज भी रिलेवेंट है, जैसे फ्री में भी अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया में पब्लिश करता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो डेवलपमेंट का उन्होंने पहले डिफिनेशन इस ग्रुप में दिया, डेवलपमेंट नीड्स आर प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। एनवायरमेंटल साइंस के और इंडिया के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए व्हाट इज द जरूरत डेवलपमेंट, जैसे वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा एक कभी एक नीतू चार ऐसे करके आंकलन करके बोलता है, तो वैसे ये बोलते हैं। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए 2 मिनट दूसरी भाषा में समझाओ नहीं समझ, तो इसके अपने चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यहीं पे IPCC चैलेंजेस ये हैं। तो दूसरी स्लाइड से थी जो आगे हमें दूसरा वाला बात करने वाला था, तो मैंने स्किप कर दिया। तो ये है कि डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट बड़ी रिलेटिव है, आपके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आपके कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट दूसरा होगा, बस्तर का एक आदिवासी है उसके कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट दूसरा होगा, बिल गेट्स के लिए डेवलपमेंट कोई दूसरा चीज़ होगी, एक एवरेज अमेरिकन के लिए दूसरी चीज़। पहले तो हमको यही समझना होगा कि डेवलपमेंट क्या है। दूसरा, मीटिंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर। भाई फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो प्रेजेंट जनरेशन ही इतना डिस्पैरिटी में रह रहा है, इतना मतलब इनइक्वालिटी है, हम प्रेजेंट जनरेशन संभाल ले वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सब कई बार जब फिलोसॉफिकल डिबेट आप करोगे ना, डेप्थ में जाओगे, तो किस जनरेशन की बात कर रहे हैं भाई। आज हम इंडिया में जितना जो इकोनॉमिक्स के लोग कुछ लोग हैं, अगर नहीं है तो गिनी इंडेक्स अगर आप देखेंगे दुनिया का वन ऑफ दी सबसे खराब इंडेक्स है। 10% लोगों के पास 80% मनी है, यही है ना। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल स्टेट ज़्यादातर लोग हैं, पर कैपिटा इनकम इंडिया की क्या है पर एनुअल $2,700 के आसपास, कुछ 800 में हर साल बदलती रहती है, एक रफ फिगर मान लीजिए $2,700, ठीक है, ये मीन है। और अभी भी हम डेवलपिंग नेशन, और आप जानते हो जहाँ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आउटलायर्स बहुत हैं, वहाँ पे मीन जो है हमेशा प्लॉट होता है ना। तो आपको मीडियन देखना चाहिए। मीडियन इनकम क्या है इंडिया की, खोज मारिए जल्दी मिलेगा नहीं, किसी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स में नहीं मिलेगा। मैं 4 दिन मेहनत किया तब जाके मुझे पता चला कि $700 के आसपास, मीडियन $700 के आसपास है, और मीन जो है आपका 2,700, यही अपने आप में इक्विटी बता रहा है ना। 10% लोगों को जो टॉप हैं उनको हटा दीजिए, तो आपका इनकम जो होती है 2,700 से 700 हो जा रही है, और आप डेवलपमेंट और इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात करें। तो चैलेंजेस हैं जिनको कि हमको केवल अखबार पढ़ के या यूट्यूब पढ़ के या उससे नहीं करना, हमको खुद एनालाइज करना होगा। ये हमको किसी ने नहीं बताया कि आप कैसे अप्रोच करोगे, ये देखना होता है, आपको सोचना होता है। जब आपको नींद नहीं आए, ये क्यों मुझे हुआ, एक इकोनॉमिक्स वाले जानते होंगे कुछ कर्व होता है, आई डोंट नो एनीबॉडी होता ना, कुछ कर्व, ये इन्वर्टेड यू डेवलपमेंट वर्सेस प्रॉस्पेरिटी का था, जिसमें कि उनको नोबेल प्राइज मिला। सिंपल सा इन्वर्टेड यू का है ना, एक्स एक्सिस इज पर कैपिटा इनकम, वाई इज तो इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी इसको यूज किया जाता है। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट इधर है, इन्वायरमेंटल डैमेज वाई। आप सोचिए कि उल्टा कर्व रखा हुआ है यू,
जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे, इन्वायरमेंटल ड्रेनेज है वाई एक्स पे वो है डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है, पर कैट का इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, डेवलप कर रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डैमेज बढ़ता जा रहा है। फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, फिर वो डाउन होने लगेगा। डाउन कब होता है? रिपेयर फेज। जो मैंने कहा कि इंग्लैंड में, अमेरिका में सब जगह सब तबाह हो गया था, सांस लेने वाली हवा नहीं थी, पानी खराब हो गया था, खेत खराब हो गए थे, सब कुछ हो गया। उसके बाद आज जर्मनी में जाके देखिए, उनके ब्लैक फॉरेस्ट देख लीजिएगा तो लगेगा क्या जंगल है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा वैसा, है ना। ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए भी बोले जाते हैं कि वहाँ नीचे लाइट नहीं दिखाई देती है, या वो कितना घने दिखाई देते हैं। जो आपने सोचा है कि क्या कोई आगे है क्या GDP आ रहा है वाई पे ये $2,700 पे ही है। ये बहुत सारे मॉडल्स में किया गया है, जिन जिन कंट्रीज में ये रिपेयर पे शुरू है और $2,700-3,200 के आसपास में होता है। इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी एक्चुअल सिचुएशन $700 वाली। तो जब आपकी मीडियन इनकम $2,700 के क्रॉस करेगी तब आप रिपेयर भेज देंगे, मैसेज यही है ना। तो लेकिन वो 2,700 रियल वाला 2,700 या 2,800 तब आपके पास इतना पैसा रहेगा। ऐसा अभी की सिचुएशन में केवल हम उसमें ये कहा जाता है, लॉजिक उसके भी होते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जिस समय वो ग्राफ वो कंट्री ट्रांजिशन में थी तब टेक्नोलॉजी नहीं, आप सीधे क्रॉस कर सकते हैं, उसको प्लेटिव जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे बाईपास कर सकते हैं ना। आप चाहें तो आप बाईपास कर सकते हैं, लेकिन आप एक सवाल में पूछ के बस खत्म कर रहा हूँ। गंगा अभी भी मैली है, क्या कोई टेक्नोलॉजी इशू है? 50 साल से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेम जो आज चल रहे हैं वही 50 साल पहले चलते थे, पूरी दुनिया में वही वाले चल रहे हैं। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। आपको पता नहीं होगा कि 250-300 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं, 10 साल हो जाते हैं, एक भी नहीं होता। पॉलिसी गवर्नेंस कि आप कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी है, मनी है, प्रॉब्लम है, सॉल्व कौन करेगा? वो पॉलिसी गवर्नेंस से आएगा ना। गंगा गंदी इसलिए नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, गंगा गंदी इसलिए है कि हर शहर में एसपीपी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो वो पैसा मत पूछिएगा कि वो वहाँ कहाँ का पैसा कहाँ जाना, ठीक है। आएगा 100% आएगा। सबसे क्लियरिंग एग्जांपल आप हिस्ट्री ऑफ सिंगापुर देखिए। वन ऑफ द फिलियस्ट नेशन 56-55 के आसपास वो मलेशिया का पार्ट बनना चाहता था। 4 साल 3 साल शायद हम जहाँ तक सही हैं, वो मलेशिया का एक प्रदेश बन के रहा। वहाँ के लोग तंग होकर कहे कि बहुत फिल्दी है, बहुत गंदे हैं और ये रहने लायक नहीं है, निकाल दिया उनको कि हम नहीं रखेंगे आपको अपने साथ, अपने कंट्री के पार्ट में। सिंगापुर आज दुनिया का हर इंडेक्स में आप देखिएगा टॉप 10। वहाँ जाके देखिए क्या सफाई होती है। एक च्युइंगम वहाँ नहीं मिलता है, अगर एक कागज गिरा दीजिए $500 की फाइन होती है। तो वो डेवलपमेंट होता है। वो आप सिंगापुर बनिए ना पहले। It is purely policy of government. Anybody who wants to understand development has to study Singapore as a case study. थोड़ा सा वहाँ सेमी डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, बट वो सिंगल पार्टी डोमिनेंस है। सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? अभी मैं हाल फिलहाल नैनीताल होके आई हूँ और सर वहाँ पे भी
क्या कहूँ, हर चीज़ एकदम सिस्टम से था, मतलब कोई गंदगी नहीं। और यहाँ पे सर अगर हम लोग चले भी ना तो रास्ते में कोई कुछ भी खाएगा और फेंक देगा, ऐसा पैसा वैसा, मगर आप किसी गाड़ी के बगल से है ना मंडी वहाँ पर एक होटल यहाँ 1,000 में 5,000 तक। ठीक है सर, बट आप वहाँ सफाई बहुत ज़्यादा है। हम सिंगापुर तो बाहर से आते हैं, बहुत सारी जगह